So Unit 5 में you have the book. यूनिट 5 104 में यूनिट 5 ना. Yes, paper 104, Unit 5. हाँ. Yes. So 5.2 introduction में it is talking about comparing with the Western psychology. In Indian psychology, it is basically about the connectedness. So we think about like not there is not a selfish reason for doing anything. There will be always an unselfishness. So in the introduction, they talk about dharma and karma, and especially in this chapter, they talk about emotions. One is the method. See, for the हम लोग ये 4 यूनिट पढ़ा, उसमें मेथड बताया नहीं था. उसमें बताया ठीक है व्हाट इज कॉन्शियसनेस, व्हाट इज माइंड, ये सब बताया. नाउ इन दिस चैप्टर यू विल नो अबाउट द मेथड्स व्हाट वी नीड टू प्रैक्टिस in Indian psychology. So there is an along with that there is an holistic understanding of cognition and knowledge. Then different types of emotions, what they use in Indian psychology. Then they talk about volition. Volition means the willpower to decide to do or not to do, to decide what an independent individually what I need to the free will. So please switch on your videos. Okay. So Karma Yoga, they also mention about the Karma Yoga, one of the paths outlined in the Bhagavad Gita. And it talks about, I'm just reading the introduction. It talks about the interconnectedness. Karma Yoga offers a transformative approach, integrating selfless action, ethical conduct, and spiritual awareness. So basically, Indian psychology में क्या है? It focuses on the interconnectedness of all beings. आप लिख सकते हैं. So introduction में it talks about the interconnectedness, and Karma Yoga offers a transformative approach. So what is that approach that we will discuss today? In Advaita, what is the technique they are giving? And mainly it focuses on the selfless action and ethical contact. What are the ethics we follow? And individual free will to choose. Every moment we have the right to choose what to choose and what not to choose. And they also talk about aesthetic moods, human journey, delicate balance between individual agency, selfless action. Here we also give more importance to Karma Yoga. Okay. So in 5 points of cognition and knowledge. So here the cognition, see, we talked about consciousness, we talked about mind in the unit 4. In unit 5, we talk about cognition. Cognition is it becomes aware of, obtains knowledge of an object or event. Cognition includes the process of sensation, perception, recognition, conceptualization, judging, reasoning, and so on. तो यहाँ हम कॉग्निशन का बात करते हैं. इसमें इतना प्रोसेस होता है, सेंसेशन होता है, परसेप्शन होता है, रिकॉग्निशन होता है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन. ये पेज नंबर 194 में 5.3 में लिखा है. एंड दूसरा शब्दों में इट इंक्लूड्स ज्ञान, विज्ञान एंड प्रज्ञान. तो शंकराचार्य ने क्या बताते हैं कॉग्निशन के ऊपर? So it is written, he follows basically what is explained in the ancient Vedic tradition. And he explained the cognition is the foundation for Gyan Marg, or the path of knowledge for attaining self-realization. So this cognition process becomes the foundation for Gyan Marg. तो ऐसा क्या करते हैं हम इस cognition ज्ञान मार्ग में?
सो उपनिषद में क्या बोलते हैं, इट टू कंस्ट्रक्ट ए मॉडल अबाउट द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉग्निशन एंड नॉलेज, and basically which all the basically indescribable approximately describe as Sachidanand or existence, bliss, is reflected in countless individual beings. ठीक है, Shankara's views of cognition. In the introduction of the commentary, Shankara builds on Vedic worldview and combines many insights of the Upanishads to construct a model about the nature of consciousness, cognition, and knowledge. Following the idea of at the beginning of the universe of one, Shankara suggests how basic properties of the one, which although basically indescribable, are approximately described as Sachidananda or consciousness and bliss. All organisms, including humans, must look out at the environment for getting food. See, basically यहाँ cognition, शंकराचार्य ने क्या बताता है, cognition हमने देखा था, it is an becoming aware of and obtain knowledge through sensation, perception, recognition, conceptualization, judging and reasoning. For example, देखो एक पेन है, so this pen, इस पेन को आप पहले हाथों से सेंस कर रहे हैं, फील करते हैं, फिर एक आइडिया आता है, एक पेन, एक समझ आ गया, रिकॉग्निशन आ गया, पेन है, फिर एक आइडिया आ गया, पेन माना ऐसा होता है, फिर आपका रीजन बोलते हैं सच में ये पेन है बोलते हैं। तो ये अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन कैसे आया, आपकी अटेंशन अंदर मुगी से बाहर मुगी होता है। और शंकराचार्य क्या बताता है, कोई भी चीज, अभी दुनिया में जिंदा रहना है तो आपको बाहर में चीज देखना ही पड़ेंगे, कि कमाई करना पड़ता है, खाना पकाना पड़ता है, खाना ढूंढना पड़ता है, तो इसके लिए हमको बाहर देखने के लिए जरूरत होता है, नहीं तो ये शरीर नहीं जिंदा रहेंगे। सो शंकराचार्य क्या बताते हैं, कोई भी हो इंसान, इट बिकम्स ए नेचुरल attitude, natural behavior to look outward, and looking outward is inward is uncommon. तो कॉमन क्या होता है, हम लोग बाहर देखते हैं, ये कॉग्निशन प्रोसेस होता है, इट इज अ नॉर्मल फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग। बट कुछ वाइज मैन, कुछ लोग क्या करते हैं, अंदर की तरफ ध्यान को भी ले जाते हैं। दे लीड टू डेवलप varied ways of looking inward to attain vidya. क्यों अंदर की तरफ देखते हैं, नॉलेज, विद्या समझने के लिए, द ट्रांस कॉग्निटिव फॉर्म ऑफ नॉलेज। बाहर का चीज कॉग्निटिव फॉर्म है, लेकिन अंदर का चीज कहते हैं ट्रांस कॉग्निटिव फॉर्म। और बाहर देखते हैं इनकम्प्लीट नॉलेज होते हैं, अंदर की तरफ देखते हैं कंप्लीट नॉलेज मिलता है। सो पतंजलि ने क्या बताता है, he explain it as the error of taking the self as object, which means the one who experiences drishta as drishya. तो पतंजलि योग सूत्र में क्या बोलते हैं, कॉग्निशन के ऊपर, हम बाहर देखने से क्या होता है, गलत हो जाता है। क्या क्या गलत होता है, द एरर ब्रिंग्स इन इट्स वेक ए सीरीज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। गलती से क्या क्या होता है, इगोइज्म आ जाता है, फिर राग द्वेष हो जाता है, कई चीज हम अट्रैक्ट होता है, कई रिपेल होता है, उसको राग द्वेष कहते हैं। स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर द परपेचुएशन ऑफ लाइफ, एक्सेस ऑफ मिसरी ओवर हैप्पीनेस, उसके कारण दुखी हो जाता है। और इस दुख से बाहर आने के लिए पतंजलि ने क्या बताता है, टर्निंग आवर अटेंशन टुवर्ड्स इनवर्ड, बाहर मुखी से अंदर मुखी आ जाओ। फिर शंकराचार्य ने और क्या डिफाइन किया है, देखिए पेज नंबर 197 में, he explains about some methods, like about 8 चीज बताता है शंकराचार्य ने। So while the self Atman is conscious and also devoid of pleasure and pain, हमारा अंतर्मुखी जो हमने वो शांति का प्रैक्टिस किया है ना, वो न्यूट्रल होता है। वो न्यूट्रल माना उसमें प्लेजर और हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस नहीं रहता है, इट इज डिवॉइड ऑफ प्लेजर एंड पेन।
and non-self, anatman, is non-conscious. So for the Shankara, the two are as different from each other as light and darkness. अंतर्मुखी है तो वो लाइट है, बाहरमुखी हम देखते हैं वो डार्कनेस कहते हैं. वो ये एक पॉइंट है. दूसरा, बॉडी itself is not conscious but we erroneously presume that it is. दूसरा शंकराचार्य ने क्या बताता है, पहले चीज बताया हम अंतर्मुखी है तो वो लाइट है, बाहर चीज है तो सब डार्कनेस है. सेकंड क्या बताता है, बॉडी बॉडी इटसेल्फ इज नॉट कॉन्शियस. हम शरीर को कॉन्शियस देखते हैं ना, देखो हाथ हिलता है, हम पेन से लिखते हैं तो क्या सोचते हैं, ये शरीर जिंदा है. लेकिन शंकराचार्य ने क्या बताता है, ये शरीर जिंदा नहीं है, कॉन्शियस नहीं है. जो अंदर वो पुरुष होता है वही जिंदा है, ये शरीर जड़ है, ऐसा बताता है. तीसरा क्या बताता है, प्योर कॉन्शियसनेस, जो चित्त होता है हमारा अंदर की, वो प्योर कॉन्शियसनेस होता है, वो मोटा नहीं है, लीन नहीं है, नेदर फैट नॉर लीन, नेदर टॉल नॉर शॉर्ट, वो बताता है. और 14 क्या बताता है, सेल्फ इज ए विटनेस टू अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ एंड केपेबल ऑफ रिटेनिंग इक्वानिमिटी. अभी हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, देखिए सब लोग प्रैक्टिस करना. अभी बाकी लोग हैं या नहीं, कोई वीडियो थोड़ा ऑन कर लीजिए, अभी लास्ट डे है ना, थोड़ा वीडियो ऑन करके ये प्रैक्टिस करो आप. भाई जी आपका भी वीडियो ऑन नहीं है? मेरा वीडियो ऑन है, नहीं, हमको नहीं दिख रहे आप. मेरे को दिखाई पड़ रहा है मेरा वीडियो. इसके अच्छा. लिए मैं दो स्क्रीन ऑन किया है ना, एक में वीडियो नहीं है, एक में वीडियो है. शायद आप स्क्रीन थोड़ा हटा कर देखिए, मेरा दो वीडियो है. नहीं, वो पीछे से ही अरेंजमेंट इस तरीके से हम लोग नहीं देख सकते एक दूसरे का वीडियो, सिर्फ होस्ट और को होस्ट हमारे को देख सकते हैं. अच्छा, आप वीडियो नहीं देख सकते हैं? नहीं, हमें किसी का नहीं दिख रहा, हालांकि हमारे ऑन है वीडियोस, बट अच्छा, हम आपकी ओन वीडियो दिखाई पड़ता है ना. अपना दिखाई दे. हाँ. हाँ, so please हमारा. switch on your video and see your own face. हाँ. अभी है ना, हम एक थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे. सब आपके सामने जो भी चीज, ये प्रैक्टिस है ना, आज जो सीख रहे हैं आप, ये हमेशा के लिए आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है. और मैं क्वेश्चंस जो अपलोड करके रखा है क्लासरूम में, वो आप पूरा भरेंगे. हाँ. एटलीस्ट 3 महीने ये प्रैक्टिस करने के बाद दोबारा वो असेस करेंगे, क्या आपके अंदर जीवन में क्या चेंजेस आया, हम और नोट करेंगे. मे भी मैं ओके. हफ्ते में एक बार भी आपको है ना एक क्वेश्चन पोस्ट करूंगा, वो फिलअप करेंगे, तो क्या क्या चेंजेस है आपको मालूम होगा. तो ओके. क्या प्रैक्टिस करना है आपको, क्योंकि इस चैप्टर में प्रैक्टिकल बताया है क्या करना है बोल के. हम्म. तो अभी हम वो प्रैक्टिस करेंगे एक बार. आपके सामने जो चीज है उसको देखना, हम्म. और पेन. बाकी लोग भी जो हो सकता है ना, वीडियो ऑन कर लीजिए. हम्म. आपके सामने है ना, उसको देख लीजिए, और सब कुछ देखते सुनते हुए देखिए. मेरा ये एक आवाज है, दो आवाज है, दो आवाजों के बीच में क्या होता है, कोई भी दो आवाज के बीच में क्या होता है? गैप होती है. शांति. गैप. ठीक है, मैं और एक चीज बताऊंगा, जब आप बात करते हैं ना उस समय आपका माइक ऑन करना, बाकी समय माइक बंद कर लीजिए, क्योंकि पीछे कई आवाज आ रहे हैं. हम्म. तो दो आवाज, 1 2, ये दो आवाज के बीच में क्या होता है? शांति रहती है. शांति. साइलेंस. हाँ, साइलेंस. साइलेंस होता है ना. भी नहीं. नाउ आपकी ध्यान उस साइलेंस के ऊपर होना है. कोई भी आवाज हो उसको सुनते हुए मेरा ध्यान, मेरा अटेंशन उस साइलेंस जो बीच में आवाज के बीच में होता है ना, उसके ऊपर ध्यान ले जाना है आपको. हम्म. सब कुछ देखते हुए सुनते हुए आपकी ध्यान साइलेंस के ऊपर होना चाहिए. शायद किसी ने अनम्यूट किया है, इसीलिए हमको थोड़ा ज्यादा आवाज आ रहा है. तो कोई भी आवाज सुनते हुए आवाज के बीच में जो साइलेंस होता है ना, उसको महसूस करना. अभी
मंजूषा बहन, आप थोड़ा माइक बंद करके देख लीजिए, आवाज वहां से आ रहा है या मेरी यहाँ से आ रहा है, पता नहीं। तो ये आवाज है ना, 1 2 1 2, तो ये दो आवाज के बीच में साइलेंस होता है ना, उसके ऊपर ध्यान देना है आपको। और इस साइलेंस के ऊपर जब ध्यान देते हैं, क्या क्या ध्यान देना है आपको? ये साइलेंस है ना, शंकराचार्य ने क्या बताता है, ये लाइट है। ये ध्यान होता है ना, इसको ही लाइट कहते हैं। और जो बाकी चीज होता है वो सारा अंधेरा है, जड़ है। ये शरीर जड़ है, लेकिन ये साइलेंस का अनुभव होता है ना, यही सच है बोलते हैं। तीसरा क्या बोलते हैं? और ये प्योर कॉन्शियसनेस, जो साइलेंस आपने अनुभव करते हैं ना, ये फैट लीन नहीं होता है, मोटा छोटा नहीं है ये, और लंबा चौड़ा भी नहीं है। फिर चौथा क्या बताता है? ये साक्षी है। जो आप साइलेंस होकर देखते हैं ना, आंख खोलते हुए सब कुछ देखते हुए जो साइलेंस का अनुभव करते हैं ना, वो चीज विटनेस है, साक्षी है। जो अप्स एंड डाउन्स होता है जीवन में, कई बार हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, चिंता करते हैं, हंसते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन ये सब चीजों से न्यारा चीज है, क्या है? ये शांति जो आपके अंदर होता है ना, साक्षी अवस्था, वो ये सब चीजों से न्यारा है। और क्या बताता है? और however irrational is common among all kinds of, Shankara observes that such misattribution of properties however irrational is common among all kinds of people. लेकिन अभी ये शांति का आप अनुभव करते हैं ना, लेकिन दुनिया वाला उसका अनुभव नहीं करते हैं। इसके कारण हमारे अंदर भी क्या होता है, जो रियल नहीं है उसको हम रियल समझ लेता है। तो शंकराचार्य के ये एक्सप्लेनेशन में क्या समझ आता है, सारा दिन आपको इस शांति के ऊपर ध्यान हमेशा होना चाहिए। इवन ब्रह्म कुमारीज में भी, राजयोगा में भी यही कहते हैं, याद करो, याद करो, याद याद। इसके लिए याद करना है, इस शांति को हमेशा याद रखना है आपको, कभी भूलना नहीं है। और क्या बताता है, शंकरा कॉल्स दिस बेसिक एरर अविद्या। जब इस शांति का भूल कर शरीर के ऊपर आपके ध्यान आ जाता है, पांच इंद्रियों के ऊपर ध्यान आ जाता है, हर कर्म में ध्यान चले जाता है, उसको अविद्या कहते हैं। लेकिन हर कर्म करते हुए, सब कुछ देखते हुए, सुनते हुए, जब इस शांति के ऊपर आपके ध्यान रहेंगे, उसको विद्या कहते हैं, उसको नॉलेज कहते हैं। फिर फिर क्या बोलते हैं, आप इस शांति के ऊपर ध्यान रखना, ठीक है। फिर भी बोलते हैं, नोयर, एंजॉयर, सफरर एंड एजेंट ऑल एट द सेम टाइम। जब इस शांति के ऊपर ध्यान रखते हैं, शंकराचार्य ने क्या बताते हैं, यही सच में जानने वाला है, नोयर है। और यही शांति है ना, सब कुछ यही अनुभव करते हैं। शरीर अनुभव नहीं करते हैं, मन अनुभव नहीं करते, बुद्धि अनुभव नहीं करते हैं। जो आप साक्षी होकर देखते हैं ना, वही सब कुछ अनुभव करने वाला है, अच्छा हो बुरा हो, दोनों चीज को। एंड इट इज एन एजेंट, वही सब कुछ करता है बोलते हैं। ऑल्दो आपने शांति से देखते हैं साक्षी होकर, फिर भी हर चीज उसके कारण ही होता है। जैसे राजयोग में बाबा क्या बताता है, मैं ही करता हूं, परमात्मा ही करते हैं, आप नहीं करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ भी शंकराचार्य बोलते हैं, बुद्धि सोचते हैं, मन सोचते हैं, शरीर सोचते हैं, मैं ही हर चीज करता हूँ, लेकिन क्या बोलते हैं, ये शांति साक्षी अवस्था होता है ना, वही सब कुछ करते वाला है, उससे ही सब कुछ होता है। लेकिन गलती से हम सोचते हैं इस शरीर काम करता है। फिर क्या बताता है शंकराचार्य ने, reminds us that humans including learned ones are open to be influenced by rewards and punishments.
कई चीज आप करने से खुश हो जाता है। कई लोग आपके बारे में अच्छे बोलने से आप खुश हो जाता है, बुरा बोलने से दुखी हो जाता है। तो ये रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट भी आपकी मन उसको समझते हैं, मैं दुखी हो जाता हूँ, मैं खुश रहता हूँ। लेकिन शंकराचार्य ने अभी बताता है, आप ये साइलेंस के साथ साक्षी होकर देखते हैं ना, वही ओरिजिनल स्थिति है आपका। उसमें अच्छे बुरा नहीं होता है, उसमें खुशी का बात और दुख का बात नहीं होता है। लेकिन वो न्यूट्रल होकर सब कुछ देखते हैं, अनुभव करते हैं। लेकिन वो मन बुद्धि गलती से खुश हो जाता है, दुखी हो जाता है। लेकिन सच में आप आपकी ओरिजिनल स्थिति से देखा जाए तो आप कभी खुश नहीं हो सकता है, कभी दुखी नहीं हो सकता है। सिर्फ आप साक्षी होकर देख सकते हैं, वही सच है बोलते हैं शंकराचार्य ने। फिर बोलते हैं cognitive process of observation and reasoning is contingent to a host of contextual and background factors and consequently never absolutely correct or final। और जो भी चीज आप अच्छे समझते हैं, बुरा समझते हैं, खुश होते हैं, दुखी होते हैं, ये सारा क्यों होते हैं? वो आपकी कॉग्निशन के कारण। कॉग्निशन माना जो बचपन से लेकर आज तक आपने जो सोचा, पढ़ा, देखा, सुना, उस चीजों से वो इन्फ्लुएंस्ड है। लेकिन आपकी ओरिजिनल स्थिति से आप कोई चीजों से परेशान नहीं हो सकते हैं। आपकी ओरिजिनल अवस्था से कोई चीज अच्छा या बुरा हो, उसको देखते समय आप विचलित नहीं हो सकते हैं। आप सिर्फ साक्षी होकर ही देख सकते हैं, वही सच्ची अवस्था बोलते हैं शंकराचार्य ने। तो ये 8 चीज बताया है। फिर आपका किताब में अविद्या को 2 तरीके का बोलता है, एक मूल अविद्या, दूसरा तुला अविद्या। मूला और तुला। तो मूला में क्या होता है? जैसे हम लोग अलग अलग है, आप अलग है, मैं अलग हूं, ऐसा अलग अलग चीज दिखाई पड़ता है, उसको मूला अविद्या बोलते हैं। दूसरा तुला अविद्या में फॉल्स इंप्रेशंस, जैसे एक पेन बोल दिया, लेकिन ये पेन कैसे है, आप जो सीखा है, सुना है, वो हिसाब से आप इस पेन को देखेंगे और मैं मेरा हिसाब से देखेंगे। तो हर इंसान, हर व्यक्ति अपने हिसाब से हर चीज को समझते हैं। वो ब्रह्म सूत्रास में, विवाह चूड़ामणि में शंकराचार्य ने बताता है, एक रस्सी है लेकिन उस रस्सी को हम साफ समझ लेता है। क्यों साफ समझ लेते हैं? क्योंकि हम कभी साफ का देखा होगा, लेकिन वो साफ नहीं है, सिर्फ रस्सी है। तो ऐसा ही हम, है ना, इसको तुला अविद्या। तो अविद्या को जो गलत हम समझते हैं, उसको 2 तरीके का बोलता है, एक मूल अविद्या, दूसरा तुला अविद्या। मूल अविद्या क्या है? एक चीज कई चीज जैसा दिखाई पड़ता है। और तुला अविद्या माना सच को हम सच दिखाई नहीं पड़ता है। जो हमारा कई सारा कारण से, साइको बायो सोशल फैक्टर से, जो भी हमारे मन में विचार हम लोग सीख कर आए हैं, देख कर आए हैं, सोच कर आए हैं, वो हिसाब से हम कई चीजों को देखते हैं। तो इसके कारण हम इस शरीर को जिंदा समझते हैं, उस मन को सच समझते हैं, हमारा बुद्धि को बहुत अच्छा समझते हैं। लेकिन हम ये समझते नहीं है, ये सब गलत है, अविद्या है। सच क्या है? जो हम शांति से देखा, साक्षी होकर देखा, वही सच है। लेकिन हम उसको सच मानते नहीं है, क्योंकि हम उसको तुला अविद्या, फॉल्स इंप्रेशन से, उसको प्रोजेक्शन भी कहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं, और विक्षेपा भी कहते हैं। तो ये वेस्टर्न साइकोलॉजी में आपका किताब में लिखा है, 2 लोग हैं, पिएजे और हेरमेन्यूटिक्स। उन्होंने, पीजे ने क्या बताया था, बच्चे जैसे बड़े होते हैं, जैसे वो छोटे बच्चे होते हैं, वो बच्चा कोई भी चीज को, अभी कुत्ते को देखा, बिल्ली को देखा,
तो जैसे कुत्ता होता है, बिल्ली होता है, ऐसे ही देखते हैं वो ये नहीं सोचते ये बिल्ली काटेंगे, कुत्ता काटेंगे, ऐसा नहीं सोचता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुत्ता बिल्ली को देखते हैं तो ओ ये बिल्ली हमको काटेंगे, कुत्ता हमको काटेंगे, ऐसा सोचकर हम दूर चले जाते हैं। क्योंकि हम है ना, कभी देखा है कुत्ता काटते हुए, या कोई बोला है हमको कुत्ता काटते हुए, तो उस इम्प्रेशन के हिसाब से हम देखते हैं। और आपकी किताब में ये भी बताया है, ठीक है, ये इम्प्रेशन कई जगह पे हमको मदद करता है, लेकिन ये अविद्या का कारण भी वही बनता है। ठीक है, आपकी दिनचर्या में काम करने में ये मदद करते हैं, हमको लोगों से कैसे व्यवहार करना, हमारा ऑफिस में कैसे व्यवहार करना, ये सब हम सीखते हैं इसके कारण। लेकिन यही चीज हमको रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी देता है, जिसके कारण हम मन को सच कह देता है, बुद्धि को सच कह लेता है, जिसके कारण हम उस साक्षी अवस्था को ज्यादा अनुभव नहीं करते हैं। और राजयोगा में भी आज भी मुरली में था, डेड साइलेंस को अनुभव करो। लेकिन वो डेड साइलेंस कब क्यों अनुभव करेंगे हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सारे दिन में दिमाग एक्सटर्नल बाहर की चीजों में ध्यान चलते रहता है। उसमें क्यों ध्यान नहीं देते हैं, हमको पता नहीं है, यही सच है। वो डेड साइलेंस ही सच है, लेकिन हमको वो पता नहीं है। मुरली में कई बार कई तरीके से बाबा बताते हैं, फिर भी हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो शंकराचार्य ने बोलते हैं वही डेड साइलेंस ही सच है, वही साक्षी है, वही सब कुछ करता है, उससे ही हम परमात्मा से कनेक्शन हो सकता है। लेकिन हम वो नहीं करते हैं, साक्षी होकर नहीं देखते हैं हर चीज को, उसको अविद्या कहते हैं। लेकिन साक्षी होकर आप हर कर्म करेंगे, सारा दिन करेंगे, उसको विद्या कहते हैं। तो अविद्या में दो चीज बताता है, मूला और तूला। और मूला माना एक को हम अनेक देखते देखते हैं, और तुला माना हम जो पढ़ के आए हैं, सीख कर आए हैं, वो इसे हिसाब से हर चीज हम देखते हैं, समझते हैं, उसको तुला विद्या कहते हैं। और दूसरा एक कारण भी बताते हैं, हम जो पढ़ के आया, सीख कर आया, उसके पीछे ही हम पड़े रहते हैं, स्टिक टू द पास्ट। और इसमें स्कीमाटा, पीजे ने उसका स्कीमा कहते हैं, स्कीमाटा माना कोई चीज हमने हमारा दिमाग में बिठा दिया, ये व्यक्ति ऐसा ही है। अभी कोई व्यक्ति पहले बार आपको मिलते हैं, बहुत प्यार से बात करे, तो आप सोचते हैं ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा व्यक्ति है। और कोई व्यक्ति पहले बार आपसे गुस्से से बात किया, तो हमेशा आप सोचते हैं ये व्यक्ति बहुत नाराज वाला है। तो ये क्या है, उसको स्कीमाटा कहते हैं। स्कीमाटा माना किसी चीज के बारे में आपने एक आइडिया बना दिया, फिर सारा जिंदगी वो आइडिया के हिसाब से आप करते रहेंगे। तो हम भी मन बोल के, कोई ने कुछ कह दिया तो मन को यही मन बोल दिया, हम सोच लिया, हमने यही बुद्धि समझ लिया, तो वो हिसाब से सारा जीवन चलते रहता है। कभी हम जो समझ लिया उसके ऊपर क्वेश्चन उठाता ही नहीं हमको। इसके लिए तो ये अविद्या को कैसे हम ओवरकम करेंगे, उस अविद्या से कैसे हम बाहर आएंगे, उसको बोलते हैं वी कैन ओवरकम बाय अकोमोडेशन। अकोमोडेशन माना नए चीज को समझना, अकोमोडेट करना। वो राजयोग में हम 8 शक्तियों का पढ़ते हैं ना, उसमें एक शक्ति है अकोमोडेट करना। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अकोमोडेशन को? सहन समाना। करना। हाँ, समाना। पेज पेज नंबर बोले ना भाई जी, पंचायत जी। अभी पेज मैं नंबर इंग्लिश किताब में 200 में बात करता है, 200, 200। 200 200। एंड 201। ओके। उसमें assimilation by schemas, it can overcome by accommodation। तो उसमें पीजे एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बताया बच्चे का दिमाग कैसे डेवलप होता है। तो उन्होंने बताया बच्चे बचपन में क्या करता है, जब बहुत छोटा होता है तो जो चीज देखता है ऐसा ही देखता है, वो कुछ समझते नहीं है। फिर धीरे धीरे उनको समझ आता है,
उनको चीज को देखना, उसको टच करना, ये सारा धीरे धीरे उनका डेवलप होता है। तो वो चीज इधर बताया है। तो Advaita system presents views of cognitive process that closely parallel with hermeneutics and Piagetian views just presented। तो जो वेस्टर्न साइकोलॉजी में बताया जैसे कैसे बचपन में बच्चे का दिमाग बड़े होते होते पहले वो जो चीज है ऐसा ही देखता है, फिर धीरे धीरे उसके बारे में सीखते हैं, उसका समझते हैं। तो यही चीज शंकराचार्य ने भी बताया। कैसे बताया? दो नाम दे दिया उसको, स्थूला अविद्या। स्थूला अविद्या माना जो हम सीखते हैं वो हिसाब से हम आगे कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन ये अविद्या हमेशा चेंज होते जाते हैं, हमेशा के लिए स्थिर नहीं रहता है। लेकिन जो सत्य है, जो शांति का आपने अनुभव किया, वो हमेशा स्थिर है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है, वो हमेशा साक्षी ही है। तो हमको ये समझना, ये अविद्या में चेंज होते जाते हैं। हमने आज इस पेन को प्लास्टिक समझा, इसको ब्लू कलर देखा, लेकिन बाद में और ज्ञान मिलने से आप बोलेंगे नहीं ये ब्लू नहीं है, ये ब्लू में ये लाइट ब्लू है, और ये हाथ में ऐसा करने से टूट जाएगा। तो हर दिन नए नए इंफॉर्मेशन आने से ये नया नया दिन नए नए परिवर्तन होते जाएंगे। आज बोलेंगे मन ये है, कल बोलेंगे नहीं वो मन नहीं है, उसका नाम बुद्धि है। ऐसा है ना, बदलते रहेगा। लेकिन जो सत्य है, जो आपने शांति का अनुभव किया, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है, वो हमेशा स्थिर है, वही सत्य बोलते हैं। तो उसको विद्या कहते हैं। जो परिवर्तन होता है उसको अविद्या कहते हैं। फिर बोलते हैं जो विद्या है हमेशा के लिए स्थिर रहते हैं, उसमें आपको कुछ साइंटिफिक रिसर्च करने का जरूरी नहीं है। लेकिन जो परिवर्तन होता है, मन हो है, बुद्धि है, चीजें हैं, इसमें साइंस चाहिए, इसमें बुद्धि लगाना चाहिए, क्या है वैसा है वैसा है। लेकिन जो हमेशा स्थिर रहता है, शांत रहता है, साक्षी होकर रहता है, उसमें कुछ रिसर्च करने का आपको कुछ जरूरी ही नहीं है, उसको सिर्फ आपको अनुभव करना है बस। तो क्योंकि साइंस का काम उसमें नहीं आता है, काम नहीं आता है। फिर आपका 203 में फ्रॉम परसेप्शन टू कॉग्निशन, तो इसमें इंटरमीडिएट निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं, सविकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। तो निर्विकल्प सविकल्प क्या है? निर्विकल्प, निर्विकल्प माना जो हमेशा रहता है, while the former is devoid of specification। जो शांति में वो होता है, स्थिर रहता है, साक्षी होकर रहता है, वो निर्विकल्प है। और जो चेंज सॉरी होता भाई है, जी, सॉरी भाई जी, मुझे नहीं मिल रहा है। और आपका स्क्रीन भी ऑफ है क्या? पेज नंबर वीडियो 203, पेज नंबर 203 में ये निर्विकल्प विकल्प सविकल्प लिखा है। मेरा इंग्लिश बुक है, तो इंग्लिश में क्या लिखा है? फ्रॉम इंग्लिश में परसेप्शन 203, टू कॉग्निशन। इंग्लिश में हाँ, 203, फ्रॉम परसेप्शन टू कॉग्निशन। कॉग्निशन, ओके। और उसमें आपका स्क्रीन? ये निर्विकल्प सविकल्प लिखा है। ठीक है, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट पेज आएंगे 204। तो ओके, और इसमें आपका वीडियो भाई जी? मेरा वीडियो ऑन ही है, मेरा दो वीडियो है। आपने ना मेरा दूसरा वीडियो भी देखो, उसमें मेरा चेहरा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, मेरा दो वीडियो देख रहे हैं आप? वो वीडियोस नहीं दिखाई देंगे दूसरे एंड पर, वो सेटिंग उनकी इस तरीके से कि वो हाँ आप नहीं देख ठीक सकते। है, तो सिर्फ आपका वीडियो देखो आप। और अद्वैत व्यू ऑफ कॉग्निशन में ये सब बताता है, जो साइकोलॉजी में भी, वेस्टर्न साइकोलॉजी में भी ये बताते हैं। जो हम बचपन से लेकर आज तक पढ़ा पढ़ के आया, सोच के आया, वो हिसाब से हमारा परसेप्शन होता है। फिर the significance of an experiment does not derive from a mere perceptive recording, it cannot be dissociated from an interpretation। तो जो भी आप देखते हैं, सुनते हैं,
वो हमेशा चेंज होते जा रहे हैं, इंटरप्रिटेशन उसका चेंज बदलते जा रहा है, लेकिन वो साक्षी अवस्था में कुछ चेंज नहीं होता है। फिर differences in views about what we can do with such understanding। ठीक है, अभी क्या है, आपको आपका किताब में ये भी लिखा है, कई चीज जो बचपन से लेकर आज तक देख कर आए हैं। अभी समझो आपका बॉस नाराज होते हैं, तो वो नाराज क्यों होता है? हमारा मन के अंदर कुछ बैठा है, ये व्यक्ति बहुत नाराज वाला है, मेरे काम कुछ भी करे ये गलती निकालते रहता है, कुछ गुस्सा करते रहता है, ऐसा एक बार मन में बैठ गया, तो हमेशा उस व्यक्ति को देखेंगे तो वही नजर आएगा आपको। तो पेज नंबर 2067 में यही बताता है, एक एग्जाम्पल दिया है। फिर उसको कैसे ट्रीटमेंट कराता है, उनको समझाते हैं, देखो भाई आपकी बॉस उस समय नाराज किया, लेकिन हमेशा वो नाराज नहीं रहते हैं, वो भी उसके अंदर भी प्यार होता है, खुश रहता है। तो ऐसा उनको नया एक स्कीमेटा, नया चीज इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसके कारण उनके अंदर परिवर्तन आते हैं। उसको साइकोलॉजी में कॉग्निटिव बिहेवियर कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। यही चीज शंकराचार्य ने भी बताता है, कई चीज हमारा मन में बैठा है, मन के बारे में, बुद्धि के बारे में, शरीर के बारे में, जिसके कारण, जिस अविद्या का कारण हम परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो इसमें पेज नंबर 2078 में एक एक स्टेप्स बताते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? केयरफुल स्टडी ऑफ द अद्वैता लिटरेचर। देखिए आपका 207 में इंडियन साइकोलॉजी क्या करते हैं वो बताता है। उसमें तीन चीज करते हैं, 3 स्टेप प्रोसेस। पेज नंबर 207 में 3 स्टेप प्रोसेस बताता है। एक है श्रावण, श्रवणा, दूसरा है मनना, तीसरा है निधि ध्यासना। तो आज तक जो भी हम पढ़ के आया, 4 यूनिट में पढ़ा, उसको हम प्रैक्टिकल कैसे यूज करेंगे, इसके लिए 3 स्टेप बताता है अद्वैता में शंकराचार्य ने। 3 स्टेप क्या है? वो बृहदारण्य का उपनिषद में लिखा है। 3 स्टेप प्रोसेस क्या है? एक है लिसनिंग, श्रावणा, मनन। दूसरा मनना, रिफ्लेक्शन, तीसरा हम्म, निधि ध्यासना, उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, निधि ध्यासना कोई, अच्छा ये अलग है थर्ड स्टेप। उसको अनुभव करते हैं, अनुभव में लेकर आते हैं। और ये तीनों करने से क्या होता है? सेल्फ रियलाइजेशन होता है। तो हम क्या किया, अभी इस 4 दिन मन के बारे में पढ़ा था, ये मन क्या होता है, कॉन्शियसनेस क्या है, उसके बारे में पढ़ा। तो पहला चीज हम लोग करते आया था, उसको क्या बोलते हैं? आपने सुनते आया ना 4 दिन, तो उसका क्या बोलते हैं? श्रावणा। ठीक है, अभी हम रिफ्लेक्ट किया, साथ साथ रिफ्लेक्शन किया, ऐसा मन क्या करते हैं, बुद्धि क्या करते हैं, बुद्धि सच नहीं है, मन सच नहीं है, वो स्थिर रहते वही सच है। ऐसा हमने थोड़ा ध्यान में भी प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करके देखा। अभी उसको फिर क्या किया हम लोग, अभी प्रैक्टिस किया ना, अभी हम 2 मिनट प्रैक्टिस करेंगे। सब कुछ देखते सुनते हुए हम उस शांति के ऊपर ध्यान देंगे, साक्षी होकर बैठेंगे। तो इस साक्षी अवस्था में हम क्या करते हैं? मेडिटेशन, कॉन्टेम्पलेशन, निधि ध्यासना, उसका अनुभव में ले आते हैं। और जब अनुभव में ले आते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या और एक्सप्लेन करते हैं, एक एक स्टेप क्या है? केयरफुल स्टडी ऑफ द अद्वैता लिटरेचर। क्योंकि आपने अद्वैता लिटरेचर, ब्रह्म सूत्र और विवेका चूड़ामणि और उपनिषद सब पढ़ेंगे ना, उसमें बार बार यही आपको बताएंगे, आप शरीर सच नहीं है, आत्मा सच है, वो पुरुष का गुण का बताएंगे, वो साक्षी होकर रहेंगे, उसमें कुछ विचलित नहीं होता है। ऐसा है ना, कई बार कई कहानी के रूप में बताते ही जाएंगे। तो आप पढ़ते 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 क्या होगा, फिर
उसके ऊपर आप रिफ्लेक्शन करेंगे, अच्छा ये स्थिर है क्या, स्थिर होकर कैसे काम कर सकता है, तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में उसका अनुभव करेंगे। तो नंबर 2, रिफ्लेक्टिंग ऑन द टीचिंग्स ऑफ अद्वैत सिस्टम, क्रिटिकल एग्जामिनेशन। जो अभी तक पढ़ के आया, अच्छा मन नहीं है तो वो कैसे नहीं हो सकता है, मन झूठ है तो वो कैसे झूठ होता है, फिर रियल लाइफ में आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे। फिर दूसरा क्या है, आई एम ब्रह्मन, आई एम द बॉडी। तो मैं ही वो साक्षी अवस्था होकर जो रहते हैं वही सच में मैं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। लेकिन उसको बार बार आप पढ़ेंगे, ट्रू सेल्फ इज दैट विच रिमेन्स वन एंड द सेम, हमेशा साक्षी होकर रहता है ना, हमेशा के लिए एक जैसा रहता है, वही मैं हूं, सच में वही मैं हूं। देन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द चेंजिंग वर्सेस अनचेंजिंग, फिर धीरे धीरे आपको लगेंगे, अच्छा मैं कभी खुश हो जाता हूँ, कभी दुखी हो जाता हूँ, क्या ये सच नहीं है क्या? तो लेकिन खुश होते हुए, दुखी होते हुए, फिर मैं वापस साक्षी होकर रह सकता हूँ। तो ये खुश मेरे अंदर होता है वही सच नहीं है, क्योंकि वो कभी थोड़ा देर के लिए खुश रहता हूँ, थोड़ा देर के लिए दुखी रहता हूँ। तो हमेशा के लिए मैं कैसा रह सकता हूँ, साक्षी होकर रहेंगे तो मैं हमेशा के लिए एक जैसा रह सकता हूँ। तो ऐसा आप खुद के अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं और ये बार बार प्रैक्टिस करते हैं साक्षी होकर रहने का। फिर थर्ड स्टेप क्या बोलते हैं, इट इन्वॉल्व्स मेडिटेशन। उसमें आपका ध्यान सारे बाहर चीजों से हट जाता है, क्योंकि आप समझ आ गया ये कभी खुश रहते हैं, कभी ये व्यक्ति दुखी करते हैं, कभी मैं दुखी हो जाता हूँ। लेकिन ये कितना बार मैं ये कभी खुश रहूंगा कभी दुखी रहूंगा, ये करते करते मैं थक गया, अभी मैं क्या करूं, शांत होकर बैठ जाऊं। तो ये करते 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 आपका ध्यान बार बार उस शांति के ऊपर खींचेंगे, क्योंकि आपकी पता है वो शांति ही सच है। लोग इंसान क्या करते हैं, कभी कुछ देंगे तो खुश हो जाता है, कुछ दूसरा बोलेंगे तो दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो आप भी परेशान हो जाता है इसके ऊपर, कभी दुख कभी अशांत, कभी ये बात कभी वो बात। तो इसमें ही फंसे रहेंगे तो क्या होगा, फिर सोचते हैं अभी मैं है ना शांति होकर बैठ जाऊं, क्योंकि वही सच है। तो मेडिटेशन माना विथड्रॉ अटेंशन कंप्लीटली फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, बाहर की सब चीजों से मन को हटाकर आपके अंदर जो शांति का अनुभव होता है उसके ऊपर आप ध्यान लेकर आते हैं। तो ये आपकी पेज नंबर 208 में बताया है। तो इसमें क्या प्रोसेस है, अकॉर्डिंग टू दास गुप्ता उसमें प्रोसेस है, योगा प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन होता है, निर्विकल्प समाधि होता है, फिर कैरेक्टराइज बाय द लैक ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन नोयर नॉलेज एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, सो डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द सेल्फ। क्या होता है, एक्सेस कॉन्शियसनेस बिकम वन विद इट, जब आप शांति का अनुभव करते हैं तो आप एक हो गया, उसमें दूसरा नहीं है। तो बाबा भी परमात्मा राजयोगा में भी शिव बाबा ये बोलते हैं, मैं सुख दुख से न्यारा हूं। तो परमात्मा हमेशा वो न्यारा स्थिति में, साक्षी स्थिति में रहते हैं, और वही अवस्था हमको भी अनुभव करना है, साक्षी होकर रहने का। ये शरीर सच नहीं है, आत्मा बिंदी वही सच है, लेकिन बिंदी में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो बिंदी में सच में क्या है, वो जब हम शांति होकर अनुभव करते हैं ना खुद को, वही सच में सोल कॉन्शियसनेस है, साक्षी होकर रहने का। तो ये खुद कितना उसके ऊपर चिंतन करेंगे, फिर आपकी ध्यान बार बार उस शांति की तरफ खींचेंगे। So aside from having an intensive desire for spiritual self-development, the person will have dispassionate about worldly gains, and it is expected to acquire several virtues. तो जितना आप शांति का अनुभव करेंगे, बाहर का चीजों से मन हट जाता है, फिर क्या क्या आपके अंदर गुण आ जाता है, फॉरबियरेंस, फेथ, उस परमात्मा के ऊपर विश्वास आ जाता है, फॉरबियरेंस, टॉलरेंस आ जाता है। तो हर समय आप जो चीज चेंज होता है, जो चेंज नहीं होता है उसके ऊपर आपके ध्यान जाते रहता है, जो चेंज नहीं होता है उसके ऊपर बार बार आपका ध्यान आ जाएंगे। तो इसके लिए वो 3 स्टेप टेक्निक बताता है।
तो हाईएस्ट गोल क्या होता है? निर्विकल्प समाधि, पेज 209 में बताया है। और कॉग्निटिव डिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ईगो। तो इसमें दूसरा चीज भी बताया है, वो ईगो है ना बिल्कुल खत्म हो जाता है। देखो, आप दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ देखते सुनते हुए उस शांति का आप अनुभव करेंगे, तो करने से क्या होगा? ये मैं मेरापन है ना बिल्कुल खत्म हो जाता है। जब आप साक्षी अवस्था में रहेंगे, मेरापन ही नहीं रहता है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सेंटर निवासी हूँ, ये हूँ वो हूँ, सब खत्म हो जाता है। तो सब खत्म है ना, आपकी ईगो है ना खत्म होना चाहिए, तब वो साक्षी अवस्था को आप सच को अनुभव कर सकते हैं। तो विवेका चूड़ामणि में पेज नंबर 209 में ईगोलेस स्टेज, सेल्फलेसनेस, कंपैशन। तो जो व्यक्ति ये प्रैक्टिस करता है, उनको एक आइडेंटिफिकेशन क्या है? वो सेल्फलेस रहता है। सेल्फिश नहीं रह सकता है वो इंसान। मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, नाम शान, इसके पीछे वो नहीं भाग सकता है, क्योंकि उनकी ईगो बिल्कुल खत्म रहता है। और दूसरा साइन क्या बताता है? कंपैशन। कंपैशन रहता है। जो जो बुद्धिस्ट फिलोसफी में भी ज्यादा बताता है ना, कंपैशन चाहिए, करुणा, उसके ऊपर ज्यादा बात करते हैं। तो वो कौन कर सकता है? जब उनकी ईगो जब तक खत्म नहीं होगा, वो सेल्फलेस भी नहीं रह सकता है या कंपैशनेट भी नहीं हो सकता है। तो ये कब होगा? जब आप ईगो को खत्म करेंगे। सो पेज नंबर 209 में सेल्फलेसनेस एंड कंपैशनेट बिहेवियर ऑफ ए सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन। आप जितना साक्षी होकर रहेंगे, आपके अंदर क्या क्या गुण आ जाएगा? सेल्फलेसनेस आ जाएगा, कंपैशन आ जाएगा। ठीक है, आपका टाइम हो रहा है, तो ये चीज देखो आप। इसमें है ना मेन चीज, श्रावण, मनन, निधिध्यासन, ये 3 प्रैक्टिस बताता है इंडियन स्क्रिप्चर्स में। और दूसरा 211 में दूसरा बात करते हैं इमोशंस के, क्योंकि आपने देखा इंडियन स्क्रिप्चर्स में एक भक्ति योगा होता है, एक कर्म योगा होता है, एक ज्ञान योगा होता है। तो अद्वैत फिलोसफी उपनिषद के हिसाब से ज्ञान मार्ग का बात बताता है। ज्ञान मार्ग क्या है? क्या सच है, क्या झूठ है, ये समझकर उस सच को आप धारण कर लिया, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, तो वो ज्ञान मार्ग है, अद्वैत फिलोसफी है। और दूसरा भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में आप देखेंगे तो इमोशंस को आप एक्सप्रेस करते हैं, किसके ऊपर? इंसान के ऊपर नहीं, एक परमात्मा के ऊपर। तो ये इमोशंस के बारे में आपका किताब में नाट्य शास्त्र में भरत बोल के एक है, भरता, उन्होंने इंसान के अंदर, इंसान और एनिमल, ह्यूमन बीइंग एनिमल, दोनों के ऊपर क्या क्या गुण होता है, 8 गुण बताता है। उसका एक टेबल भी दिया है आपका किताब में, पेज नंबर 215 में एक 8 गुण के बारे में बताता है, जो इंसान और एनिमल दोनों के अंदर है। फिर इस गुणों में और डिटेल में जाते हैं, जो सिर्फ इंसान अनुभव कर सकते हैं। और इस गुणों द्वारा, जैसे वो मूवीज में आप देखते हैं, कोई व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल रामायण में देखा, राम का सीता कोई रावण लेकर गया, उसके कारण वो दुख होते हैं। तो जो भी व्यक्ति सिनेमा देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में जो अनुभव हुआ, उसका वो इमोशन को अनुभव करने से मन हल्का हो जाता है। तो इसके बारे में वो लिखा है, इमोशंस क्यों ज्यादा रोल प्ले करते हैं। तो इस इमोशन को परमात्मा के तरफ ले जाने से मन के अंदर जो दुनिया की इच्छा कैसे पूर्ण होता है, वो एक्सप्लेन किया है। दूसरा कर्म योगा। कर्म योगा में क्या है? हर काम करते हुए ईगोलेस होकर, कर्म का जो रिजल्ट होता है उसके ऊपर ध्यान ना देवे, लेकिन कर्म कैसे करना उसके ऊपर ध्यान देना। ऐसा होकर कर्म करने से ईगो नहीं रहता है। तो आप यहाँ देखेंगे, इवन ब्रह्म कुमारी राजयोगा में भी आप देखेंगे, बाबा बार बार क्या बोलते हैं? याद करो, याद करो। याद किसको करना? परमात्मा को करना।
तो हर चीज, हर कर्म में परमात्मा को याद कर कर हर कर्म आप करेंगे, उससे क्या होगा, आपकी ईगो खत्म हो जाता है। तो अद्वैता में भी क्या करते हैं, ईगो को खत्म करते हैं। कर्म योगा में भी ईगो को खत्म करता है। भक्ति योगा में भी आपको ईगो को खत्म करता है। और राजयोगा में भी ईगो खत्म करते हैं। तो आपकी ईगो बार बार खत्म करते जाएंगे तो क्या होगा, क्यों इस ईगो के ऊपर पीछे पड़े हैं। राजयोग में भी आप बाबा बार बार बोलते हैं ना, मेरापन को खत्म करो, मैं को खत्म करो, मेरापन खत्म करो, मेरे को याद करो, सारे आपकी मेरापन को तेरे में लेकर आ जाओ। क्यों बार बार बताते हैं, बताइए इसका रीजन क्या है। ये एक इम्पोर्टेंट रीजन है। अहंकार, अहंकार अहंकार क्यों खत्म करना है। दुख का कारण है ना। जितना सत्य के साथ रहेंगे उतना शांत रहेंगे। दूसरा दूसरा और इम्पोर्टेंट रीजन है, बार बार बाबा भी बताता है राजयोगा में। एक चीज बाबा क्यों याद करने के लिए बोलता है, उसका मेन कारण क्या है। नहीं, सत्य को विकर्म, हाँ, विक्रम विनाश होता है। विकर्म विनाश। हाँ। तो बार बार बाबा बोलता है ना, मेरे को याद करो, विक्रम का विनाश होगा। लेकिन कैसे, अभी तक है ना, मैं इतना साल 20 साल हो गया, मैं हमेशा सोचते रहता हूँ ये विक्रम कैसे विनाश होगा याद करने से। लेकिन ये किताब में ये समझ आया, जब अहंकार होता है ना, विक्रम बन जाता है। जितना आपका अहंकार नहीं होता है उतना विक्रम खत्म हो जाता है, विक्रम नहीं बनता है, अहंकार से विक्रम बनता है। तो जितना ये कर्म योगा, भक्ति योगा, ज्ञान योगा, राजयोगा से आप बिना अहंकार कर्म करेंगे तो क्या होता है, एक आपकी विक्रम विनाश हो जाता है। दूसरा, कितना आप निरहंकार होकर कर्म करेंगे, कोई विक्रम नहीं बनता है। तो इस किताब में आपका पेज नंबर कहाँ लिखा मैंने, पेज नंबर 225, पेज नंबर 225 में लिखा है, intense hatred comes, emotions are single-mindedly directed toward God. They lead to release the individual from demerit from past actions. तो ये सब चीज क्यों बताया यूनिट 4 में, हम बिना अहंकार कर्म करना शुरू करेंगे तो हमारा विक्रम विनाश हो जाता है। और आपका 230 में वॉल्यूशन, विल पावर, apperceptive acts that are of the character of inoperative thoughts do not transform themselves into karma. तो 230 में बुद्धिज्म में भी क्या बताता है, साक्षी होकर आप हर कर्म करेंगे, उससे क्या होता है, आपकी जो कर्म आपके अंदर पड़ा है पिछले जन्म का, वो सारा काम में नहीं आएगा बोलता है, खत्म हो जाएंगे बोलता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट थिंकर्स 230 में, ये perceptive acts that are of the character of inoperative thoughts do not transform themselves into karma. तो साक्षी होकर आप कर्म करेंगे, आपकी पुराना विक्रम सारा खत्म हो जाएंगे बोलते हैं। फिर वॉल्यूशन विदाउट ईगो 231 में, वॉल्यूशन विदाउट ईगो इन्वॉल्वमेंट इज व्हाट वी कॉल earlier pure volition, available in meditative and pure states of combinations. Whenever there is ego reference, all related actions produce karma, which in turn conditions subsequent behavior. तो ये पेज नंबर 231 में ये लिखा है, आप ईगो, बिना ईगो कोई भी कर्म करने से आपकी विक्रम विनाश हो जाता है। और ऐसा स्थिति में आप कर्म जितना कर्म करेंगे कोई विक्रम नहीं बनता है। ठीक है, the more ego involved we are doing or expecting, the more complex and prolonged would be the activities that follow. पेज नंबर 233 में। तो अल्टीमेटली यहाँ बताया आपका कर्म योगा का इम्पोर्टेंस। तो बाल गंगाधर तिलक ने गीता के बारे में ट्रांसलेट किया ना, उसमें क्लियरली बताया है कर्म करो, क्योंकि उन्होंने बोला अद्वैता में शंकराचार्य बोला कर्म कुछ मत करो, संन्यास ले लो। लेकिन अद्वैत में भी शंकराचार्य ने इनको बोला है, जो
सोचते हैं समझते हैं मैं इस जन्म लेकर आया सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, वो जितना कर्म अवॉइड करेंगे अच्छा है, इसके लिए वो संन्यास धर्म को ये किया। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने भगवत गीता के बारे में लिखता है ना, उसमें बताता है लेकिन आप कर्म कर सकते हैं लेकिन उस फल के ऊपर ध्यान मत रखो। लेकिन फल के ऊपर क्यों ध्यान रखना नहीं है? क्योंकि उसका कई सारा कारण से फल आता है। और दूसरा ये भी बताया कर्म करते समय अहंकार ना हो, क्योंकि अहंकार होने से विक्रम बनता है, ना अहंकार होने से आपकी कर्म विक्रम नहीं बनेंगे। लेकिन वो कैसे करेंगे? उसके लिए एक है वैराग होना चाहिए। कोई भी फल का इच्छा ना कैसे होंगे? वैराग होने से इच्छा ना होगा, और वैराग ना होने से आप निरहंकारी भी रहेंगे। और जितना उस साक्षी अवस्था का अनुभव करेंगे आप निरहंकारी रहने से, आपके अंदर वो अनलिमिटेडनेस, सबको एक जैसा देखने का भाव आ जाएंगे, जिसके कारण आपका सेल्फिशनेस खत्म हो जाएंगे। फिर कंपैशनेट, मेहर और मेर्सी, बाबा भी बोलता है ना दूसरे के ऊपर रहम करो। तो वो रहम क्यों कब आएंगे? जब आपकी अहंकार खत्म होगा तो रहम आएगा। तो इसके लिए वैराग चाहिए। ठीक है, शायद हो सकता है हिंदी में लिखना, वो मेरे को पता नहीं, आप उधर पूछ सकते हैं, शायद हो सकता है हिंदी में लिख सकता है, लेकिन कंफर्म कर लीजिए। तो ये यूनिट 5 में क्या 2 लाइन में समझना है, तो मेन चीज श्रावण मनन और उसका अनुभव, मेडिटेशन, निधि ध्यासना, ये करने से क्या होगा? आपकी साक्षी अवस्था ज्यादा अनुभव करने से आपका वो है ना अहंकार खत्म हो जाता है, जिसके कारण आप वो अनलिमिटेडनेस अनुभव करने से, सबको एक नजर से देखने से आपकी विक्रम भी खत्म हो जाता है, और आपके अंदर वो कंपैशन डेवलप हो जाएंगे। फिर उस गुण से आपके अंदर कभी अहंकार नहीं हो सकता है, निरहंकारी रहेंगे। और जिसको निरहंकारी रहने से, हमेशा उस साक्षी अवस्था में आप रहने से वो सेल्फ रियलाइजेशन अनुभव करेंगे। उसका एक तरीका है आपकी सब शरणागति, परमात्मा को शरणागति करने से आपकी पूरा इमोशंस, जो भी फीलिंग्स इमोशंस आप पांचों इंद्रियों की तरफ भेजते हैं, वो इमोशंस परमात्मा की तरफ भेजने से, ध्यान ले जाने से आपके अंदर इमोशंस भी निरहंकार होने से वो इमोशंस भी न्यूट्रल हो जाएंगे। आपके अंदर अच्छे अच्छे गुण, जो सात्विक गुण है ना, आपके अंदर आ जाएगा, सतो प्रधान बन जाएंगे, जिससे आपका साक्षी अवस्था में रहने का वो अवस्था भी आ जाएगा, जिससे आपके अंदर सब परमात्मा जैसा बन जाएंगे। ठीक है, यही आपका यूनिट 5। उसमें कुछ डाउट है अभी? 2 मिनट में बता दीजिए। आपका दूसरा फैकल्टी भी आ गया, आ गया होगा। भाई जी वो सर मैं इसके नोट्स आप भेजेंगे सर? नोट्स मैंने ना मैं हाईलाइट किया है, मैं ना नोट्स बनाकर अपलोड कर दूंगा वो क्लासरूम में, 1-2 दिन में कर दूंगा। उसका पीडीएफ जैसा भेज सकते हो क्या भाई जी आप? हाँ ठीक है, कर दूंगा। क्योंकि वो मुझे तो ना ही 3-3 मिनट वीडियो के स्क्रीन वीडियो दिखा भी है। अगर मंडू के उपनिषद के बारे में कैसे आपने वीडियो किया है ना, हाँ वैसे छोटे 3-4 मिनट के वीडियो करे एक एक इसके ऊपर भी। हाँ, मैं कई सारा बना कर रखा है, मैं पोस्ट कर दूंगा, वो क्लासरूम में मैं हाँ, अपलोड कर दूंगा। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाले तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं नहीं हूँ, प्लीज आइए सर। तो पता नहीं उसमें ऐड कर सकता है नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको ऑफिशियली बनाया होगा ना, तो अच्छा अच्छा। आप अनऑफिशियल कुछ बनाए तो इसका जरूरी नहीं, वो क्लासरूम में बनाया है ना, तो उसमें से आप ले सकते हैं। ठीक है, ये इसका मैंने थोड़ा असाइनमेंट के लिए पूछती हूँ आपको। राइट अबाउट यूनिक एस्पेक्ट्स एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस दैट शेप इंडियन साइकोलॉजी। तो इसमें यूनिक एस्पेक्ट्स आप क्या है ना क्या ये क्वेश्चंस क्लासरूम में आप कुछ भी कितना भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगा। अभी क्लास का ओके टाइम हो गया ना, दूसरा फैकल्टी आया होगा। ओके ओके ओके, थैंक यू भाई जी। ओके, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।